भगवद गीता का अध्याय 6 श्लोक 1 से 10 तक। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्मफल कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निं चाक्रिय यम संन्यासमिति प्राहुर्योग तम विद्धि पांडव न हि संन्यस्त्स्नल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षो मुनेर्योग कर्म कारण मुच्यते योगारुस्य तसेव क्षम कारण मुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुष्यस्ते सर्वस्नल्प संन्यासी योगारुद्धोच्यते उद्धरेदात्मनात्मान्नात्मान्मवसादेत आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्य येनात्मैवाम्ना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशांत्स्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमान्यो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचनः सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्त्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु सम्बुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततमात्मान्न रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर्परिग्रहः। Bhagavad Gita, Chapter 6, verses from 01 to 10. Shri Bhagavan said, He who does his duty without expecting the fruit of actions is a sannyasi, Sankhya yogi, and a yogi, Karma yogi, both. He is no sannyasi, renouncer, who has merely renounced the sacred fire. Even so, he is no yogi who has merely given up all activity. Arjuna, you must know that what they call sannyasa is no other than yoga, for none becomes a yogi who has not abandoned his sankalpas, thoughts of the world. To the contemplative soul who desires to attain karma yoga, selfless action is said to be the means. For the same man, when he is established in yoga, absence of all sankalpas, thoughts of the world, is said to be the way to blessedness. When a man ceases to have any attachment for the objects of senses and for actions, and has renounced all sankalpas, thoughts of the world, he is said to have attained yoga. One should lift oneself by one's own efforts and should not degrade oneself, for one's own self is own friend, and own self is one's enemy. One's own self is the friend of the soul by whom the lower self, consisting of the mind, senses and body, has been conquered. Even so, the very self of him, who has not conquered his lower self, behaves antagonistically like an enemy. The Supreme Spirit is rooted in the knowledge of the self-controlled man whose mind is perfectly serene in the midst of pairs of opposites, such as cold and heat, joy and sorrow, and honor and ignominy. The yogi whose mind is sated with jnana, knowledge of nirguna Brahma, and vijnana, knowledge of manifest divinity, who is unmoved under any circumstances, whose senses are completely under control, and to whom earth, stone and gold are all alike, is spoken of as a God-realized soul. He who looks upon well-wishers and neutrals as well as mediators, friends and foes, relatives and inimicals, the virtuous and the sinful with equanimity, stands supreme. Living in seclusion all by himself, the yogi who has controlled his mind and body, and is free from desires and void of possessions, should constantly engage his mind in meditation. श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बढ़ता है। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। इससे आगे के श्लोक अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।